Hello everyone, I am Shambhavi from Progressive Science Education, and today we're gonna take up with the topic from Social Science Democratic Politics, that is chapter number 1, part 2, Why Democracy. As you all know that we are completed with our first part, what is democracy, in which we have learned about many forms of government which are actually non-democratic like monarchy and dictatorship, but wanted to know themselves as a democratic form of government. So first of all, let's take a overview of this chapter. Okay, so let's get started. Now, overview. What is democracy? What are its features? This chapter builds on a simple definition of a democracy. Step by step, we work out the meaning of this term involved in this definition. The aim here is to understand clearly bare minimum features of a democratic forms of government. After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic government. Towards the end of this chapter, we step beyond this minimal objective and introduce a broader idea of democracy. Democracy is the most prevalent form of government in the world today, and it is expanding to more countries. But why it is so? What makes it better than from the other forms of government? And that is the second big questions that we take in this chapter. Now, summary definition, and by this summary definition, you will understand that what you have learned in your part 1. Let us sum up the discussion so far. We started with a simple definition that democracy is the form of government in which the rulers are elected by the people. सबसे पहले आपने ये देखा था कि डिस्कशन किया था कि हम डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन क्यों करते हैं. उसके बाद आपने एक सिंपल डेफिनेशन दी थी कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. We found that this definition was not adequate unless we explained some of the key words used in it. और उसके बाद आपने ये देखा था, अगर हम एक्चुअली इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से देखें तो हमको ये लगता है कि ये डेफिनेशन हमारे लिए एडिक्वेट नहीं है. सो through a series of examples, we worked out from features of democracy as a form of government. Accordingly, democracy is the form of government in which rulers are elected by the people, take all the major decisions, and elections offer a choice and fair opportunities to the peoples to change the current rulers, and this choice and opportunity is available to all the people on an equal basis. Okay, not unequal. And the exercise of this choice leads to a government limited by the basic rules of the constitution and citizens' right. एंड जैसे मैंने आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताई, जैसे आपने ये सिंपल डेफिनेशन देखी दैट डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. आपने एक सिंपल डेफिनेशन देखी, लेकिन हमने अगर इस डेफिनेशन को देखा तो हमें कई सारे क्वेश्चंस राइज हुए कि मीन्स इसमें अगर रूलर्स हैं तो कौन है, इसमें जो ऑफिशियल्स हैं उनको हम लोग डेमोक्रेटिक कैसे कह सकते हैं. मीन्स कई सारे क्वेश्चंस ऐसे राइज हुए, तो हम कह सकते हैं ये डेफिनेशन हमारे लिए एडिक्वेट नहीं थी. तो हमने कई सारे एग्जाम्पल्स लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए और चाइना की गवर्नमेंट के लिए, सारिया की गवर्नमेंट के लिए कई सारे एग्जाम्पल्स लिए, जिससे एट द एंड हमें 4 पॉइंट्स मिले कि ऐसे गवर्नमेंट होनी चाहिए डेमोक्रेसी की. सो लेट्स सी. तो हमने क्या देखा, जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होने चाहिए और सारे डिसीजन उन्हीं को लेने चाहिए. क्योंकि हमने देखा था पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, मीन्स पहले तो मिलिट्री कॉप थे वो, मीन्स जनरल मुशर्रफ पहले वो मिलिट्री कॉप थे, फिर उन्होंने अपने आप को एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव कह दिया, फिर उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया और अपना ईयर 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया. सो ऐसे ही हमें ये फर्स्ट पॉइंट मिला कि हम लोग जिनको चुनते हैं उनके पास ही सारी पावर होनी चाहिए कि वो कुछ भी डिसीजन ले पाएँ. उसके बाद हम लोग ने सेकेंड पॉइंट देखा था कि इलेक्शंस जो होते हैं वो फेयर होने चाहिए, मीन्स उसमें कोई भी ट्रिक्स नहीं यूज़ करनी चाहिए. जैसे हमने पीआरआई गवर्नमेंट के बारे में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि वो बहुत ही डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी इलेक्शन को जीतने के लिए. सो हमारा सेकेंड पॉइंट यही है कि हमारा जो इलेक्शंस हो वो फेयर हो, लोग जिसको चाहें वो अपने आप को जिसको चाहें वो चूज़ कर सकते हैं, और वो चाहे तो रूलर्स को चेंज भी कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट
आपने थर्ड पॉइंट देखा था कि ये चॉइस और अपॉर्चुनिटी हर इंसान को मिलनी चाहिए, आइदर ही इज़ मैन और शी इज़ वुमेन। ओके, यू कैन से दैट सबको मिलनी चाहिए ये अपॉर्चुनिटी, चाहे वो मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे कोई भी हो, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ऑन द इक्वल बेसिस। ओके, यू कैन से, आपने देखा नहीं था, वन वोट, वन मैन, वन वोट एंड वन वैल्यू, आपने ये डिस्कस किया था। एंड आफ्टर दैट हमें फोर्थ पॉइंट मिलता है दैट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। मीन्स जो गवर्नमेंट है हमारी, उनको लिमिटेड पावर मिलनी चाहिए। मीन्स जितनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा है वो सबके लिए है। सो गवर्नमेंट को लिमिटेड पावर मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो जो चाहे वो कर सकें, उन्हें एक लिमिटेड पावर मिलनी चाहिए। और वो ऐसा होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है या सिटीजन्स की जो भी राइट है उसको वो फॉलो करें। And after that you have seen this, that reads these 5 examples of working or denial of democracy, match each of these with the relevant features of democracy discussed above. So as you taken an example, that king of Bhutan has declared that in future he will be guided by the advice given to him by elected representative. So feature rule of law. After that, many Tamil workers who migrated from India were not given a right to vote in Sri Lanka. So it is the feature respect for right. The king imposed a ban on political gathering, demonstration and rallies. One person, one vote and one value. The Indian Supreme Court held the dissolution of Bihar Assembly was unconstitutional. Free and fair electoral competition. Political parties in Bangladesh have agreed that a neutral government should rule the country at the time of elections. So that is the feature major decisions by elected leaders. So I hope you all understand this examples and the features. Now let's start from part 2, what is democracy, that we are completed with what is democracy. Now our part 2 is why democracy. So an argument broke out in Madame Lindo's class. She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the students if they, though democracy was the best form of government, everyone had something to say. नाउ जो मैडम लिंडो थी उसने अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, और जितने भी बच्चे थे उनकी क्लास में उन सबको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस था। सो नाउ अब देखते हैं हम उनके बीच में क्या डिबेट हुआ। सो डिबेटिंग द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो योलंदा ने कहा, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी, दुनिया में जितने लोग हैं वो सब डेमोक्रेटिक होना चाहते हैं। Countries that were not democratic earlier was becoming democratic now. जो कंट्री पहले डेमोक्रेटिक नहीं थी अब वो डेमोक्रेटिक बनना चाह रही है। All great pupils have said nice things about democracy. जितने भी great pupils हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा कहा है डेमोक्रेसी के बारे में। Isn't it obvious that democracy is the best? Do we need to debate this? सो योलंडा कह रहा है कि अब हमने देख लिया कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट है। मीन्स अब हमें इसके बारे में डिबेट करने की क्या ज़रूरत है, मीन्स वाई डेमोक्रेसी जानने की क्या ज़रूरत है। सो टैंकिनी, बट लिंडो मैडम हैज सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सेप्ट इट। इजंट इट पॉसिबल दैट एवरीवन इज़ फॉलोइंग अ रॉन्ग पाथ। मतलब योलंडा ने पहले कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो डेमोक्रेसी है वो हमेशा बेस्ट हो। सो हमें इसके बारे में डिबेट करने की क्या ज़रूरत है। सो तंकिनी कह रहा है, लेकिन लिंडो मैम ने कहा था कि हम कोई भी चीज़ को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो फेमस है, हम उसे इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हर किसी ने उसे एक्सेप्ट किया। इजंट इट पॉसिबल दैट एवरीवन इज़ फॉलोइंग अ रॉन्ग पाथ, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हर कोई रॉन्ग पाथ को फॉलो करे। Now Jenny is saying that yes, it actually is a wrong path. Means Jenny कह रहा है yes, ये actually एक wrong path है। What has democracy brought to our country? 7 decades of a democracy and there is so much poverty in this country. तो जेनी ने कहा
कि हाँ ये एक रॉन्ग बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी ने हमारी कंट्री को ख़रीदा है। यू कैन से दैट डेमोक्रेसी ने हमारी कंट्री को ख़रीदा है। और जितने भी 7 डिकेड्स हैं डेमोक्रेसी के, दे आर सो मच पॉवर्टी इन दिस कंट्री। After that, Ribang is saying that, but what has democracy got to do with it? Do we have poverty because we are democratic, or do we have poverty despite being a democracy? So Ribang कह रहा है कि हम पॉवर्टी में हैं, मीन्स हमें जो भी प्रॉब्लम्स है उससे डेमोक्रेसी का क्या लेना देना, मीन्स डेमोक्रेसी का उससे क्या लेना देना। क्या ये ज़रूरी है कि हम पॉवर्टी में हैं तो उसमें डेमोक्रेसी का फॉल्ट है? Now, Jenny is saying that whatever, how does it makes a difference? The point is that this can't be the best form of government. Democracy is all about chaos, instability, corruption, and hydrocracy. Politicians fight among themselves who cares for a country. सो जेनी कह रहा है उसमें चाहे कुछ भी डिफरेंस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पर हमें ये तो पता है, पॉइंट तो ये है कि जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। सो डेमोक्रेसी क्या होती है? एक ऐसी मतलब जिससे पॉलिटिशियंस जो हैं एक दूसरे में फाइट करते रहते हैं हमारी कंट्री के केयर के लिए। आफ्टर दैट Poemons is saying, so what should we have instead? Go back to the British rule. Invite some kings to rule this country. सो पोएमन कह रहा है तो हमारी कंट्री के लिए एक्चुअली अच्छा क्या है? अगर हम पहले जाएं तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश रूल जब आया था हमारी कंट्री में तो हम देखेंगे। सो मेनली पोएमन ये कहना चाह रहा है कि आप ब्रिटिश रूल के टाइम पे जाओ और कुछ किंग्स को बुलाओ और हमारी कंट्री को रूल करवाओ, यही तुम्हारे लिए बेस्ट है, पोएमन एक्चुअली कहना चाहता है। नाउ रोज, I don't know. I think what this country needs is a strong leader. Someone who does not have to bother about elections and parliament. Means Rose अब कहना चाह रही है that I don't know, मुझे नहीं पता, पर मुझे बस इतना पता है कि हमारी कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। मीन्स जो इलेक्शन और पार्लियामेंट की परवाह ना करे, वो मेनली हमारी कंट्री के लिए अच्छा सोचे। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर्स, एक ऐसा लीडर हो जिसके पास सारी पावर हो, एंड ही शुड बी एबल टू डू वॉट एवर इज़ नीडेड इन कंट्रीज इंटरेस्ट, और वो कुछ भी कर सके जो हमारी कंट्री के लिए अच्छा हो। दैट अलोन कैन रिमूव करप्शन एंड पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री। सिर्फ एक यही तरीका है जिससे हम हमारी कंट्री से करप्शन और पॉवर्टी को दूर रख सकें। आफ्टर दैट समवन शाउटेड, दैट इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप। तो किसी ने ये चिल्लाते हुए कहा कि दैट इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप। सो ये डिक्टेटरशिप होगा, मीन्स सारी पावर एक ही इंसान के अंदर हो, वो कुछ भी चाहे तो कर सकता है। तो ये डिक्टेटरशिप में ही आता है। होए, what if that person starts using all these powers for himself and his family? What if he corrupt himself? मतलब होए कहना चाह रहा है तब क्या होगा जब वो पर्सन मतलब जितनी भी पावर्स हैं वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए स्टार्ट कर देगा। वॉट इफ ही इज करप्ट हिमसेल्फ? नाउ रोज इज सेइंग आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्गर लीडर। मीन्स रोज कह रहा है कि मैं खाली एक ऑनेस्ट, सिंसियर और स्ट्रॉन्गर लीडर के बारे में बताना चाहता हूँ। आफ्टर दैट हु इज सेइंग बट दैट इज़ नॉट फेयर, मीन्स ये फेयर नहीं है। यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप। तुम एक डेमोक्रेसी को आइडियल डिक्टेटरशिप से कंपेयर कर रहे हो। वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन दी आइडियल, द रियल विद द रियल। मीन्स हम जब कंपेयर करते हैं तो आइडियल को आइडियल से ही कंपेयर करते हैं और रियल को रियल से ही कंपेयर करते हैं। गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ द डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ। मीन्स जाओ और देखो कि डिक्टेटर्स का क्या रिकॉर्ड था हमारी रियल लाइफ में। दे आर मोस्ट करप्ट, सेल्फिश एंड ब्रूटल। वो बहुत ही करप्ट थे, सेल्फिश थे और ब्रूटल थे। इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस, एंड वॉट इज़ द वर्स्ट, यू कांट इवन गेट राइट ऑफ देम। एंड आफ्टर दैट यू नो, मीन्स ये जितनी भी डिस्कशन हुई ये वहाँ के सभी बच्चों के बीच में हुई। उसके बाद लिंडो मैम जो थी वो सुन रही थी। लिंडो मैडम
वॉज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट से इस डिस्कशन को सुन रही थी. नाउ सी स्टेप्ड इन. आई वॉज डिलेटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली. मीन्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोग डेमोक्रेसी के बारे में इतना डिलाइटली, इतना पैशनेटली मीन्स डिस्कशन कर रहे हैं. आई डोंट नो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग. मुझे ये नहीं पता कौन सही है कौन गलत है. दैट इज़ फॉर यू टू सेटल. बट आई डिडंट फील थैंक यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड. पर मुझे ये इतना अच्छा लग रहा है कि आपने अपने दिमाग से इसके बारे में सोचा और कुछ डिबेट करना चाहा. You may have felt very bad if someone tried to stop you or if someone punished you for saying what you felt. आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई आप बोल रहे हैं और आपको कोई रोके और आपको पनिश करे. Would you be able to do that in country? That is not democratic. अगर आप यही कंट्री के साथ करें तो इसको हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे. Is that a good argument for a democracy? ये एक गुड आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के लिए. Now, after that means people take their own decisions. मीन्स लिंडो मैम कहना चाह रही हैं आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आप कुछ बोलें और कोई आपको रोके और पनिशमेंट दे. ऐसे ही कंट्री के लिए अगर आप देखें तो हर कोई इंसान अपने आप को खुद ही रोल करे, अपना डिसीजन खुद ले. ये एक मेन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है. इफ़ यू सी दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वहाँ की उनकी डिसीजंस हमेशा अच्छे होंगे कंट्री के लिए. पीपल कैन मेक मिस्टेक. इंसान गलती करता है. इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज लेड टू डिले इन डिसीजंस मेकिंग. And it is also true that democracy leads to frequent changes in leadership, and sometimes this can set back big decisions and affect the government efficiency. These arguments shows that democracy of kind we see may not be the ideal form of government, but that is not a question that we face in real life. The real question we face is different. Is democracy better than other forms of government that are there for us to choose from? सो लिंडो मैम अब कहना चाह रही हैं ये मेन नहीं है कि डेमोक्रेसी जो है वो आइडियल है कि नहीं. मेन ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो जितनी भी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनसे अच्छी है कि नहीं. नाउ आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी. China famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the world history. Nearly 3 crore people died in this famine. During those days, India's economic condition was not much better than China, yet India did not have a famine of the kind of China had. That means China की बहुत ही बुरी कंडीशन थी 1958 to 1961 के बीच में, जिसमें जो चाइना था वो पूरी तरीके से यू कैन से वहाँ पर पूरी तरीके से सूखा पड़ गया था और ऑलमोस्ट करोड़ ऑफ पीपल्स की डाइट हो गई थी. मीन्स वो डेथ कर गए थे. ड्यूरिंग दोज डेज मीन्स उस टाइम पे इंडिया की भी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब चाइना से उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी इंडिया में सूखा नहीं पड़ा था. सो इकोनॉमिस्ट थिंक्स दैट दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन द टू कंट्रीज़. मीन्स ये रीज़न है जिससे गवर्नमेंट अलग थी, इसलिए चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इंडिया की भी उतनी अच्छी नहीं थी. लेकिन चाइना में फेमाइन आ गया, मीन्स डॉट पड़ गया, लेकिन इंडिया की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ ड्यू टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not. So, they point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. If China too had multi-party elections and opposition parties are press free to criticize the government, then so many peoples may not have died in the famine. So this example brings out one of the reasons why democracy is considered the best form of government. So ये कुछ reasons था जिससे ये हमें पता चलता है जो डेमोक्रेसी है उसे एज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसिडर्ड किया गया है.
So democracy is better than any other forms of government in responding to the needs of the peoples. अगर हम डेमोक्रेसी में देखें तो ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बाकी गवर्नमेंट से, क्योंकि ये लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है. A non-democratic government may and can respond to the people's need, but it all depends on the wishes for the peoples who rule. If the rulers don't want to, they don't have to act according to the wishes of the people. मीन्स जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो चाहे तो रिस्पॉन्ड करे चाहे तो ना रिस्पॉन्ड करे, ये उस पर डिपेंड करता है जो एक्चुअली रूल करता है. सो यू कैन से जो डेमोक्रेसी है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बाकी गवर्नमेंट से. Now, our democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people, and a democratic government is a better government because it is more accountable form of government. So that means कि जो डेमोक्रेसी है उसमें लोगों की ज़रूरतें फुलफ़िल हो जाती हैं. डेमोक्रेसी का मेन यही है कि वो लोगों की ज़रूरतों को फुलफ़िल कर देता है. सो यू कैन से दैट डेमोक्रेसी जो है बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बाकी गवर्नमेंट से, क्योंकि ये लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है. मीन्स इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, there is another reason why democracy should lead to the better decisions than any non-democratic government. यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, एक और रीज़न दिया है कि क्यों डेमोक्रेसी है बेटर डिसीजन लेती है. मीन्स क्यों डेमोक्रेसी बेटर है अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि ये कुछ डिसीजंस अच्छे लेती है. मीन्स इनका जो डिसीजंस होता है बाकी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अच्छा होता है. सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड discussion. A democratic decision always involves many persons, discussions and meetings. When a number of the persons put their heads together, they are able to point out the possible mistakes in any decisions. जब कई सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो कई ज़्यादा डिस्कशन मतलब कई सारा डिस्कशन कर पाते हैं और ये पॉइंट आउट कर पाते हैं कि पॉसिबल मिस्टेक कितनी थी इस डिसीजन में. Now, this takes time, but there is a big advantage in taking time over important decisions. ये बहुत ही टाइम लेता है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज करता है, मीन्स और ज़्यादा डिसीजन लेने में. This reduces the chances of rash or irresponsible decisions. Thus, democracy improves the quality of decision making. इससे क्या होता है कि जो मतलब डिसीजन हमारे लिए अच्छा नहीं है वो रिमूव हो जाता है और इससे हमें पता चलता है जो डेमोक्रेसी है वो एक्चुअली बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डिसीजन मेकिंग में. सो this is related to the third argument. Democracy provides a method to deal with differences and conflicts. In any society, people are bound to have differences in an opinion and interest, and these differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. People belong to different regions, speak different languages, practice different religions, and have different castes. They look at the world very differently and have different preferences, and the preferences of one group can clash with those of the other groups. How do we resolve such a conflict? So the conflict can be solved by brutal power. Whichever group is more powerful will delegate its term and others will help to accept that. But that would lead to the resentment and unhappiness. Different groups may not be able to live together for long in such a way. Democracy provides the only peaceful solution to this problem. In a democracy, no one is a permanent winner, no one is a permanent loser. Different groups can live with one another peacefully. In a diverse country like India, democracy keeps our country together. So these three arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life. But the strongest argument for the democracy is not about what democracy does to government, it is about what democracy does to the citizens. Even if democracy does not bring about better decisions and accountable government, it is still better than other forms of government. Democracy enhances the dignity of citizens as we discussed above. So democracy is based on the principle of political equality.
on recognizing poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated. People are not subjects of a rulers, they are the rulers themselves. Even when they make mistakes, they are responsible for their conduct. सो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया जो है बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। यहाँ पर जितनी भी यू कैन से दैट जो इंडिया है उसकी वेजिटेशन ले लो या कोई भी चीज़ ले लो, सब कुछ डिफरेंट है। वहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग हो रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। सो हमें ये क्वेश्चन राइज होता है, क्या ज़रूरी है जितने भी अलग अलग लोग रहते हैं उन सबकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, मीन्स जो वो सोचना चाह रहे हैं या उनकी जो बातें हैं वो सब सेम होंगी बाकी लोगों से? ऐसा तो नहीं है। इससे तो लड़ाई भी हो सकती है कि हमारे लिए ऐसा करो, हमारे लिए ऐसा करो। सो इससे लड़ाई भी हो सकती है। सो इसमें डेमोक्रेसी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। सो इससे क्या होता है कि अलग अलग तरीके के लोग जो होते हैं वो अपने आप में संतुष्ट हो पाते हैं, उनके बीच में लड़ाई नहीं होती है और वो पीसफुल वे में रह पाते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई सारे लोग एक दूसरे के साथ मीन्स डिस्कशन करते हैं। सो अलग अलग टाइप ऑफ लोग, मतलब जितने भी अलग अलग लोग आते हैं वो सभी एक दूसरे के साथ मतलब बैठ के और उसके बाद जितना भी डिस्कशन करते हैं, इससे कोई भी लड़ाई नहीं होती और पीसफुल वे में सारे डिस्कशन हो जाते हैं, जिससे एट लास्ट हमें ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी भले ही गवर्नमेंट के लिए कुछ करे ना करे, पर डेमोक्रेसी सिटीजन्स के लिए बहुत कुछ करती है। सो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जितने भी पुअर लोग हैं और अनएजुकेटेड लोग हैं वो सब रिच लोग और एजुकेटेड लोग के बराबर हैं। सो यू कैन से दे आर इक्वली ओके। और इनके जो भी डिसीजंस हैं वो सब भी इक्वली ट्रीटेड किए जाते हैं और जो बेस्ट डिसीजन होता है वो सबके लिए होता है, आइदर यू आर एजुकेटेड और रिच और आइदर यू आर अनएजुकेटेड और पुअर ओके। So you can say that finally democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistakes. मीन्स फाइनली हमें ये पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मीन्स बेस्ट है बाकी गवर्नमेंट से, क्योंकि ये हमें हमारी मिस्टेक को करेक्ट करने में हेल्प करती है। एज वी सॉ अबव, देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। लेकिन जैसे कि हमने देखा है कि इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी में कोई भी मिस्टेक नहीं होती। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। पर मेन एडवांटेज यही है डेमोक्रेसी का कि कुछ भी मिस्टेक ऐसी होती हैं तो वो ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं पाती हैं। There is a space for a public discussion on these mistakes and there is a room for corrections. मीन्स अगर पब्लिक से कोई भी डिस्कशन लेते हैं और उनमें कोई भी मिस्टेक रहती है तो वहाँ पर करेक्शन करने का भी एक रूम होता है, मीन्स आप करेक्ट भी कर सकते हैं वहाँ पर। Either the rulers have to change their decisions or the rulers can be changed. मीन्स आइदर रूलर्स को अपने डिसीजन चेंज करना पड़े या तो उन्हें अपने आप में ही चेंज करना पड़े, मीन्स या रूलर्स को चेंज कर दिया जाए। दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे नहीं होता है। लेट अस सम इट अप, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट एट एवरीथिंग एंड इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। पर अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी जो है वो हमें सब कुछ नहीं प्रोवाइड करता है और ना ही वो सॉल्यूशन है हर प्रॉब्लम का, बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। लेकिन ये बाकी जितने भी अल्टरनेटिव हैं, यू कैन से बाकी जितने भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उन सब से तो अच्छा है। इट ऑफर्स बेटर चेंजेस ऑफ अ गुड डिसीजंस। It is likely to respect people's own wishes and allow different kinds of peoples to live together. मीन्स ये सभी के डिसीजन को लेता है और सभी लोगों की रिस्पेक्ट करता है और सभी जितने भी अलग अलग तरीके के लोग हैं वो सब आराम से एक दूसरे के साथ रह पाते हैं। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स, मीन्स कभी कभार वो फेल भी हो जाता है ये सब काम करने में, इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। मीन्स अगर उनसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है सो हम वहाँ पर करेक्ट भी कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ एक अच्छी तरीके से रह भी सकते हैं।
दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए डेमोक्रेसी को एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा गया है, क्योंकि जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर लोगों की नीड्स यानी लोगों की ज़रूरतों को देखा जाता है। वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबकी डिसीशंस को देखा जाता है, मीन्स अलग अलग वेराइटी ऑफ लोग की डिसीशंस को देखा जाता है, जिससे वहाँ पर लड़ाई नहीं होती है। हम पीसफुल तरीके से अपनी डिसीजन ले सकते हैं और हम अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया जो है वो डाइवर्स है। नाउ आफ्टर दैट यू कैन सी दिस कार्टून। इस कार्टून में ये जो भी लोग हैं वो कह रहे हैं दैट वी वोटर्स आर एंग्री एंड वर नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर। मीन्स हम जो वोटर्स हैं वो एंग्री हैं और हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, मीन्स हम वोट नहीं करेंगे। The liberals have been arrogant and they have broken our trust in government। मीन्स जो लोग हैं वो मतलब जितने भी लिबरल्स हैं वो उन्होंने हमारे विश्वास को तोड़ा है, और हम जितनी भी गवर्नमेंट है हमारे विश्वास को तोड़ा है। हम उन्हें मतलब ऐसा मतलब उन्हें कह रहे हैं कि हम आपको वोट नहीं करेंगे। दे स्टोल अवर मनी, उन्होंने हमारे पैसे को चुराया है। सो ऑन जून 28 वर गोइंग टू डू वॉट कैंडिडेट्स टू बेस्ट। सो ये ऐसा धमकी दे रहा है कि हम 28 जून को जब मतलब इलेक्शन होगा तब हम मतलब अच्छे कैंडिडेट्स को चुनेंगे, मतलब अपनी गवर्नमेंट को नहीं चुनेंगे। मीन्स हम कोई भी वोट नहीं देने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू वोट देम बैक इन। मीन्स हम अच्छे कैंडिडेट को ही वोट देंगे, आपको मतलब जो अभी गवर्नमेंट है उनको वोट नहीं देंगे। मीन्स वो कहते हैं ना कि हमें वोट दीजिए, तो वही ये धमकी दे रहे हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे। आफ्टर दैट राजेश एंड मुसर्रफर रीड एन आर्टिकल। सो जो राजेश और मुशारफ हैं उन्होंने आर्टिकल को रीड किया। इट्स शोड दैट नो डेमोक्रेसी हैज़ एवर गॉन टू वॉर विद अनदर डेमोक्रेसी। मीन्स कोई भी डेमोक्रेसी किसी और डेमोक्रेसी के साथ वॉर करने नहीं जाती है। वॉर्स टेक प्लेस ओनली व्हेन वन ऑफ द टू गवर्नमेंट्स इज़ नॉन डेमोक्रेटिक। वॉर तभी होता है जब दो गवर्नमेंट जो हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक हैं। The article said that this was a great merit of democracy। और आर्टिकल यही बता रहा है यही बेस्ट मेरिट है डेमोक्रेसी का। After reading the essay, Rajesh and Muzaffar had different reactions। मीन्स इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद राजेश और मुसाफर का अलग अलग रिएक्शंस था। एंड राजेश सेड दैट दिस वाज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर अ डेमोक्रेसी। मीन्स ये कोई भी अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ अ चांस। ये एज अ मैटर ऑफ चांस है। इट इज़ पॉसिबल दैट इन फ्यूचर्स डेमोक्रेसीज में हैव वॉर्स। मीन्स ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में डेमोक्रेसीज में भी वॉर हों। मुजाफर सेड दैट इट कुड नॉट बी अ मैटर ऑफ चांस। मीन्स ये कोई भी ऐसा मैटर नहीं है चांस का। डेमोक्रेसीज टेक डिसीजन इन सच अ वे दैट इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ वॉर। मीन्स डेमोक्रेसी इस तरीके से डिसीजंस लेता है जिससे मीन्स जो वॉर के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। विच ऑफ द टू पोजिशंस डू यू एग्री विद इट वाई। नाउ अब आपको बताना है, ये जैसे इन दोनों ने बताया अपने अपने मतलब डिसीशंस बताए, अपने अपनी थिंकिंग वे में बताया। सो आप किसके साथ हैं? यू थिंक मीन्स कि आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ ठीक है। मीन्स जो डेमोक्रेसी है वो लड़ाई लगवाती है। मीन्स हो सकता है कि डेमोक्रेसी में भी लड़ाई हो या डेमोक्रेसी में लड़ाई कभी नहीं हो सकती। सो थिंक इट इन अ वे, ओके। इसके बारे में ज़रूर सोचिए। चेक योर प्रोग्रेस, ओके। एंड इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। नाउ आफ्टर दैट ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। In this chapter, we have considered the meaning of a democracy in limited and descriptive sense. We have understood democracy as a form of government. मीन्स इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के मीनिंग के बारे में लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव सेंस के में सोचा है। नाउ वी हैव अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स अब हमने डेमोक्रेसी को एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मान लिया है। This way of defining democracy helps us to identify a clear set of minimal features that a democracy must have. So the most common forms that democracy take in our times is that of a representative democracy. You have already read about this in the previous classes. So in the countries we call democracy, all the peoples do not rule and a majority is allowed to take decisions on behalf of all the people. Even the majority does not rule directly.
मीन्स अब हमने ये देख लिया है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए अच्छी है और कैसे अच्छी नहीं है इसके बारे में भी हमने देख लिया है। और हमने ये भी देखा है कि डेमोक्रेसी में हम रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, जिसके बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी स्टडी कर लिया। सो जो मेजॉरिटी होती है मीन्स जो लोग ज़्यादा चुनते हैं, जब जिनको मीन्स ज़्यादा वोट मिले होते हैं उन्हीं को मतलब डिसीजन लेने का हक मिलता है, मीन्स वही जीतते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव। सो इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, मीन्स कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेजॉरिटी डायरेक्टली रूल नहीं कर पाती है। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मीन्स लोगों की मेजॉरिटी रूल नहीं कर पाती है हर बार, मीन्स जो वो लोगों को इलेक्ट करते हैं, मीन्स जो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और जिनके पास ज़्यादा वोट होता है वही जीतते हैं और वही हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल्स, क्योंकि आप जानते हैं अभी डेमोक्रेसीज में अगर हम देखें तो बहुत ही सारे लोग हैं, that is physically impossible for them to sit together and take a collective decisions। सो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि हर तरीके के लोग एक साथ बैठें और एक ही तरीके का डिसीजंस ले। इवन इफ दे कुड द सिटीजन्स डज नॉट हैव द टाइम, मीन्स यू कैन से दैट या तो सिटीजन्स के पास टाइम नहीं है या द डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक अ पार्ट इन ऑल द डिसीजंस, या तो मीन्स उनके पास इतनी स्किल नहीं है कि वो सारे डिसीजन में आ सकें। Gave us a clear but minimal understanding of democracy, मीन्स ये हमें क्लियर भी और मिनिमल अंडरस्टैंडिंग भी देता है डेमोक्रेसी के बारे में। दिस क्लियरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज, मीन्स ये मतलब डिस्टिंग्विश करता है, मीन्स डेमोक्रेसीज और नॉन डेमोक्रेसी के बारे में डिफरेंस बताता है। बट इट डज नॉट अलाउस अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी, लेकिन ये उसमें डिफरेंस नहीं बताता है, मीन्स ये डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस नहीं बताता है, यह हमें डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस बताता है। नाउ सी दिस फिगर, ओके, रीड दिस कार्टून, that here, see this cartoon firstly clearly and after that I will tell you, okay, this is the cartoon that here you will understand that read this cartoon, and in this cartoon the famous cartoon by R.K. Lakshman, ये जो कार्टून यहाँ पर दिया है इसे क्लियरली देखिए, ये कार्टून किसने दिया है? R.K. लक्ष्मण ने। कमेंट्स ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ द 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, मीन्स कमेंट्स दिया है 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। अब हमें मतलब 50 साल उस समय जब ये दिया गया था तब 50 साल हो गया था इंडिपेंडेंस का। हाउ मैनी इमेजेस ऑन द वॉल डू यू रिकग्नाइज, आप देख रहे हैं कितनी सारी इमेजेस दी गई है वॉल पे। नाउ डू मैनी कॉमन पीपल्स फील्स द वे ऑफ कॉमन मैन ऑफ द कार्टून, मीन्स जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं ये कई तरीके के लोग हैं जिनके अलग अलग थिंकिंग वे में, मीन्स अलग अलग सोच थी, अलग अलग ओपिनियन था, अलग अलग डिसीजन था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फिगर में जितने भी लोग हैं। और यहाँ पर ये कॉमन पीपल आप ले लीजिए, यहाँ जो चेयर पे बैठा है वो कॉमन पीपल है जो कि लोगों की मीन्स जो रिप्रेजेंटेटिव उनके अलग अलग डिसीजन को विद द हेल्प ऑफ टीवी के द्वारा मतलब सुन रहा है, एंड ही इज स्लीपिंग एज यू आर सीइंग, ओके। You can see this figure as in a funny way also, and you will understand this figure by in a serious way also, मीन्स ये जो फिगर है ये एक्चुअली लोगों के मतलब जब लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव को चुना उनके अलग अलग डिसीजंस के बारे में, जैसे आप इन सब रिप्रेजेंटेटिव को देख रहे हैं इनके अलग अलग डिसीजंस के बारे में हमें जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो ये मैन सुन रहा है यहाँ पर बैठ के। और देखिए रिएक्शंस, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कार्टून, ओके। It does not allow us to see the operation of democracy beyond government. For this, we need to turn to the broader meanings of democracy. Sometimes we use democracy for organization other than the government. Just read this statement. We are a very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father. I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class. I would like to have teachers with a democratic temperament.
One leader and his family members decide everything in this party, and how can they talk of democracy? Now, these ways of using the words democracy go back to its basic sense of a method of taking decisions. मीन्स ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो एज अ बेसिक डिसीजंस है. तो देखते हैं पॉइंट्स क्या हमने डिस्कस किए. सो वी आर वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली. हम बहुत ही डेमोक्रेटिक फैमिली हैं और हम जो भी डिसीजंस लेते हैं हम सब एक साथ मिल के बैठते हैं, और जो मेरे फादर का ओपिनियन होता है वो एक्चुअली मैटर करता है. सो मुझे कोई भी टीचर ऐसी, मतलब जो टीचर ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स को बोलने नहीं देती हैं, उन्हें क्वेश्चन नहीं पूछने देती हैं, वो टीचर्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है. एंड आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद अ डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट. मुझे ऐसी टीचर्स पसंद है जो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट हो, मतलब जो एज अ डेमोक्रेटिक हो. One leader and his family members decide everything in this party, and how can they talk of democracy? Means एक leader इस फैमिली मेम्बर्स में डिसाइड करता है हर चीज़, और वो उस बारे में सोचते हैं डेमोक्रेसी में, मतलब उसके बारे में बातचीत करते हैं. ये सब वे जो मैंने आपको बताया ये एक्चुअली बेसिक सेंस है टेकिंग ऑफ डिसीजन का डेमोक्रेसी में. अ डेमोक्रेटिक डिसीजंस इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद एंड consent of all those who are affected by that decisions. So those who are not powerful have the same say of taking decisions as those are powerful. मीन्स मेनली जो पावरफुल लोग हैं उनके ही डिसीजंस लिए जाते हैं, उन्हीं डिसीजंस को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है. ऐसे देखा जाए तो अगर आप फैमिली में देखें तो फैमिली में हमारे जो फादर होते हैं या घर का जो हेड होता है उसी के डिसीजन मेनली देखे जाते हैं. सो इससे बाकी लोगों पे भी बहुत ही अफेक्ट पड़ता है. Those who are not powerful have the same say of taking decisions as those are powerful. Now, डेमोक्रेसी में ऐसा क्या होता है, डेमोक्रेसी में चाहे इंसान पावरफुल हो चाहे ना पावरफुल हो उन सब की पावर सेम रहती है. ओके. नाउ दिस कैन अप्लाई टू द गवर्नमेंट और अ फैमिली एज एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. ये जो है हमारी गवर्नमेंट को फैमिली को कुछ और ही ऑर्गेनाइजेशन पे ले जाता है. Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. So, sometimes we use the words democracy not to describe any existing government, but to set all an ideal standard that all our democracies must have aim to become. जैसे कि मैंने आपको बताया था कई नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी भी होती हैं जो अपने आप को एज अ डेमोक्रेटिक कहलाना चाहती हैं, भले ही वो डेमोक्रेटिक ना हो. कई सारी आइडियल गवर्नमेंट ऐसी होती हैं जो भले ही डेमोक्रेटिक ना हो लेकिन अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलाना चाहती हैं. सो ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड. मीन्स अगर सही सही डेमोक्रेसी लानी है तो ये तभी होगा जब कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा. In a democracy, every citizens must able to play equal role. डेमोक्रेसी में हर सिटीजन इक्वल रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में. एंड फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट. पर इसके लिए इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हमें इक्वल राइट टू वोट मिले. एवरी सिटीजन्स नीड टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन. हर सिटीजन्स को इक्वल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज मिलनी चाहिए और कई सारा कमिटमेंट मिलना चाहिए. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. Now, after that, if we take these ideals seriously, then no country in the world is a democracy. मीन्स अगर हम इन सभी आइडियल्स को सीरियसली लें तो इस कंट्री में, मीन्स अगर हम देखें तो हर कंट्री जितनी भी वर्ल्ड में है वो सब डेमोक्रेसी नहीं है. Yet an understanding of a democracy as an ideal reminds us of why we value democracy. और ये हमें बताता है डेमोक्रेसी मीन्स आइडियल रिमाइंड्स बताता है जिससे हम डेमोक्रेसी की और ज़्यादा वैल्यू कर सकें बाकी जितनी भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उनसे. इट enables us to judge an existing democracy and identify its weakness. मीन्स ये हमें जज की enables क्यों बताता है, मीन्स हमें ये बताता है कि हम कैसे कोई भी डिसीजन को जज कर सकें या कोई भी चीज़ को जजमेंट दे सकें, और हमें जितनी भी वीकनेस है डेमोक्रेसी के उन सब के बारे में भी बताता है. इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी. ओके. नाउ
In this book, we do not deal much with this notion of a democracy. Our focus here is with some core institutional features of democracy as a form of government. मीन्स इस बुक में मेनली हमारा ध्यान ज़्यादा इस पे नहीं है कि डेमोक्रेसी के बारे में मीन्स कैसा वो एक्सपेंड कर रहा है, उसकी नोएशन के एक्सपेंडेशन के बारे में नहीं है. इसमें हमारा मेन फोकस है इसके इंस्टीट्यूशनल फीचर्स के बारे में. ओके. Next year, you will read more about the democratic society and way of evaluating our democracy. Next year, आप इसके बारे में और ज़्यादा इस सोसाइटी के बारे में और ज़्यादा समझ पाएंगे and the way of evaluating our democracy. At this stage, we just need to know that democracy can apply to many spheres of life. मीन्स इस स्टेज पे हमें मेनली ये जानना है कि जो डेमोक्रेसी है वो कई सारे स्पीयर्स ऑफ लाइफ पे अप्लाई किया जाता है. And that democracy can take many forms. So you can say that जो democracy है वो कई सारे forms में है. And there can be various way of taking decisions in a democratic manner. और इसमें कई सारा वे है जिससे मतलब कई तरीके के decisions हम इसमें ले सकते हैं as a democratic manner. As long as the basic principles of constitution on an equal basis is accepted. जितने भी मतलब बेसिक प्रिंसिपल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उन सबको एक्सेप्ट किया गया है इक्वल बेसिस पे. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टुडेज वर्ल्ड इज रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. इस समय जो मेन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो ये है कि जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं मीन्स वो लोगों के द्वारा इलेक्ट हों और तभी वो रूल करें. We shall read more about that in chapter 3. इसके बारे में हम और समझ पाएंगे chapter 3 में. But if the community is small, there can be other way of taking democratic decisions. लेकिन अगर हमारी कम्युनिटी जो है वो स्मॉल है मीन्स छोटी है तो हमारे पास कई वे हैं मीन्स कई तरीके हैं जिससे हम डेमोक्रेटिक डिसीजंस ले सकते हैं. All the peoples can sit together and take decisions directly. मीन्स जितने भी लोग हैं वो सब एक साथ बैठ के डिसीजन डायरेक्टली ले सकते हैं. This is how ग्राम सभा should work in village. जैसे कि आप जानते हैं ग्राम सभा में कैसे होता है विलेज में जो हेल्ड होती है. Can you think of some other democratic ways of decision making? मीन्स क्या आप और डेमोक्रेटिक वे के बारे में जान सकते हैं मीन्स सोच सकते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है. Now this activity, find out the total number of eligible voters in your assembly constituency and your parliamentary constituency. Find out how many pupils can fit into the largest stadiums in your area, and is it possible for all the voters in your parliamentary or assembly constituency to sit together and have a meaningful discussion. So if you all want it, so you can do this activity. Okay. सो अभी तक आपने ये मेनली जान लिया है कि डेमोक्रेसी हमारे लिए किन किन चीज़ों में हेल्पफुल है मीन्स वो हमारी किस तरीके से हेल्प करती है. नाउ दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी. सो आप ये भी कह सकते हैं जितनी भी कंट्री है वो ऐसा परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है. The features of democracy that we discussed in this chapter provide only the minimum conditions of a democracy. That does not make an ideal democracy. Okay. So जिस फीचर्स के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया जिस फीचर्स के बारे में डेमोक्रेसी के बारे में हमने डिस्कस किया इस चैप्टर में वो हमें खाली मिनिमम कंडीशन के बारे में बताता है डेमोक्रेसी के. सो यू कैन से दैट दिस डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी. सो इसके हिसाब से हम एज अ आइडियल डेमोक्रेसी से नहीं कह सकते हैं. Every democracy has to try to realize the ideals of a democratic decisions making. This cannot be achieved once and for all. This requires a constant efforts to save the strengthened democratic form of decision making. So means कि इसमें ये बताया गया है कि जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है मीन्स जितनी भी डेमोक्रेसी है अपने आप को एज अ आइडियल फील कराने के लिए इन डिसीजन मेकिंग मीन्स कराना चाहती है लेकिन वो एक बार में अचीव नहीं होगा. इसके लिए हमें मतलब कोशिश करते रहना चाहिए और इसके लिए हमें कई सारा एफर्ट चाहिए टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग. What we do as a citizens can make a difference to making our country more or less democratic. हम अपने सिटीजन्स के लिए क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं ये मेनली डिफ़र करता है हमारी कंट्री के लिए कि हम कितने डेमोक्रेटिक हैं और कितने नहीं. दिस इज़ द स्ट्रेंथेंड एंड
द वीकनेस ऑफ अ डेमोक्रेसी मीन्स यही स्ट्रेंथ है और यही वीकनेस है डेमोक्रेसी की. द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन द वॉट द रूलर्स डू बट मेनली नॉट वी वॉट वी ओके बट ऑन वॉट वी एज सिटीजन्स डू. मीन्स जो कंट्री है वो इस पर डिपेंड करती है कि रूलर्स कंट्री के लिए क्या करते हैं. मीन्स रूलर्स सिटीजन्स के लिए क्या करते हैं. इस पे नहीं डिपेंड करती है कि हम रूलर्स के लिए क्या करें या रूलर्स को कैसा लग रहा है डेमोक्रेसी में. ये मेनली सिटीजन्स के बारे में डिफ़र करती है कि सिटीजन्स क्या करते हैं. नाउ दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स. मीन्स यही मेन डिफरेंस है डेमोक्रेसी में और अदर गवर्नमेंट्स में. Other forms of governments like monarchy, dictatorship or one party rule do not require all citizens to take part in politics. Means जैसे कि monarchy और dictatorship हैं वो सब जितने भी citizens हैं उन सबको एक पार्टी में नहीं रखती है. मीन्स उन्हें सबको इक्वल नहीं रखती है और उन पे ये कोई जैसे जो मैंने आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस बताई डेमोक्रेसी की वो डिक्टेटरशिप और मोनार्की में नहीं है. In fact, most non-democratic governments would like citizens not to take part in politics. So, कई सारी non-democratic government हैं जैसे कि जितने भी citizens मतलब वो टेक पार्ट करते हैं मीन्स पार्ट लेते हैं पॉलिटिक्स में. बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन्स. लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो इस पे डिपेंड करती है मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं वो सब एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लें. ओके एंड दैट इज़ वाई अ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. इसीलिए हमें डेमोक्रेसी के बारे में हम जितना भी पढ़ सकते हैं वो सब मेनली डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में फोकस करता है. नाउ अब हम सब कुछ डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली डेमोक्रेसी है क्या और हमें इसे डिफ़ाइन करने की क्या ज़रूरत है. हमने सिंपल डेफिनेशन भी देखी थी स्टार्टिंग में. उसके बाद हमने देखा था कि कई सारे क्वेश्चंस भी अराइजेस होते. उसके बाद उसकी सॉल्यूशंस के बारे में हमने देखा था और ये देखा था कि डेमोक्रेसी किस लिए है. मीन्स वाई डेमोक्रेसी और ये बाकी गवर्नमेंट से अच्छी क्यों है. हम क्यों कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी है वो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी हैं. So we are completed with this chapter that what is democracy and why is democracy. So the end. Thank you for watching my video and if you all have any doubts regarding any topic so please tell me in comment section without any hesitation. And if you all like my video so please like, share, subscribe and press the bell icon. Okay, bye bye and take care.